Good evening, everyone. Good evening, sir. So, today again, very less number of people have joined. Maybe a weekend five. Okay, so we have almost completed 50% of our syllabus. So, only one topic in quant is left. That will hardly take 15 to 20 minutes. It's a very, very small topic. That is partnership. And then we'll start with the reasoning part. So, today we have two topics to cover. One is partnership, and the other one is set theory. Okay, so we'll start with partnership first, and then we'll move to set theory. Partnership. Okay, as the name suggests, something two people are involved, right? So what happens when we have situations related to partnership business? So basically, we are talking about something, a business, जहाँ पे I have a business idea, but I don't have money. So I'll ask somebody to invest. So that person becomes a partner, okay, business partner. So let's say there are two partners or three partners or many partners. Okay, so there are many types of business, partnership business. Okay, so when we talk about partnership business, so the only concern for us is how are we going to share the profit. Okay, so business कर रहे हैं तो basically we are expecting profits. So how are the profits going to be shared? Okay, so this is the main concern for everyone. Okay, so ये एक anyone from commerce background here? Is there anyone who has studied commerce or any business in the graduation level? No? Anyone? Not responding. So everyone seems to be from computer science background. Anil, you have studied commerce? No, sir. Okay. So no problem. See, there are many business where more than one business owner is involved. Say, for example, people say Tata. Tata ka owner is people say Ratan Tata or Jayadri Tata. No, he is not just one owner. So there are many investors or many partners in the business. Okay, so एक चाय वाला से लेके एक एकदम पूरा वर्ल्ड का बेस्ट इंडस्ट्रीज तक, there are many peoples involved. Okay, so when more than two people are involved, we call it partnership business. Okay, अब छोटे लेवल में होंगे तो it is very easy to distribute the profit, but if it is in higher level, there are many other complications. Okay, so you might have seen companies having private limited and companies using just limited. Infosys, if you say, so Infosys is just limited. They put the word limited. They don't put private limited. Okay, so when we have limited number of partners, okay, so and the company belongs to those partners only, those are partnership business. Okay, जिसके पास बहुत सारा investors हैं. Say for example, if I talk about Infosys is listed in a company, listed in stock market. आप Infosys का एक शेयर खरीदो, you are also considered as the owner of Infosys. Okay, so shares are nothing but you are owner of some portion of the company. Okay, but partnership में ऐसा नहीं है.
ओके, पार्टनरशिप बिजनेस में इट इज लिमिटेड, 2 लोग ओन कर रहे हैं, तीसरा बंदा ओन नहीं कर सकता, तीसरा बंदा हैज नथिंग टू से विद दैट. ओके, सो it's a very, let's say, small business we can consider in a partnership business. So let's talk about a person A who has started a business along with the partners B and C. सबसे पहले बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस? आइडिया, यस. मनी एज वेल. और पार्टनर जो भी चाहिए, मतलब भांडवल मनी स्पेंड करता हूँ. ओके, अब देखो, हाँ, नाउ पैसे तो देखो, अगर मैं बोलूं मुझे एक वड़ा पाव का स्टॉल लगाना है, तो उसके लिए क्या ही आइडिया निकालोगे? इट्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस, राइट? सो यू जस्ट नीड टू पुट सम मनी. जहाँ पे भीड़ वाला इलाका है, ये वहाँ पे एक दुकान ले लो, पुट द मनी एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग इट. ओके, नाउ 2 things majorly involved. Idea for आजकल this is a trend because of the startup culture. Okay, so if you have business idea, if your idea works well, if your business plan, देखो सिर्फ आइडिया होने से नहीं कुछ नहीं होता. You have to have a business plan. business plan में सब कुछ होता है. आपका बिजनेस मॉडल कैसे चलेगा, उसके बाद हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू, हाउ आर यू गोइंग टू सस्टेन द बिजनेस. सो ये सब बिजनेस प्लान में आता है. सो फर्स्ट इज आइडिया इज रिक्वायर्ड, राइट? तो ये सब. नाउ बेसिकली सिंस वी आर लिमिटेड टू कैलकुलेशन पार्ट ओनली, हमारे पास 2 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर वी विल depend heavily. Okay, so idea is also okay. ठीक है, idea cannot be calculated, so we will be restricting to 2 things. One is the money. ठीक है, so whenever you put some money in a business, एक वड़ा पाव बिजनेस को करना है तो you put some money in it, so that money is called as your capital, है ना, working capital. और अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने बोला किसी को अरे कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दो, तो भी चलेगा. ओके, सो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, सो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज कैपिटल ओनली. ओके, सो इन्वेस्टमेंट इज अ बिग टर्म, वेरी लार्ज टर्म. इसका बहुत सारे मीनिंग्स भी आते हैं. ठीक है, सो व्हेन देयर आर सर्टेन इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं. ठीक है, so venture capitalist होते हैं. so those are the people who invest in the new business. they will not look after the business. okay, तो वो एक इन्वेस्टर होता है जिनको रिटर्न चाहिए. ओके, सो एक कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. सो दैट वी कॉल इट एज अ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. ओके, उसके बाद आता है टाइम, है ना. कितने टाइम? ऐसा तो नहीं है ना मैंने 100 रुपए मैंने कंपनी में वड़ा पाव खरीद के रख दिया, 100 रुपए का वड़ा पाव खरीद के रख दिया, मुझे बेचना भी है तो आगे क्या मैं उसको परमानेंटली रख सकता हूँ? नो, आई हैव टू सेल इट, आई हैव टू मेक मनी आउट ऑफ मनी, है ना. बट कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, मुझे 1 दिन के अंदर वड़ा पाव बेचना है, 2 घंटे के अंदर वड़ा पाव बेचना है. सो द अमाउंट ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ टाइम दैट यू इन्वेस्ट, यू पुट इन योर मनी इज नथिंग बट the time of investment. Okay, so these are the 2 things. Now capital is, let me say A ने C1 rupees invest किया है, B ने C2 and C ने C3. the time is T1, T2 and T3. अब बारी आती है प्रॉफिट किस तरीके से शेयर होगा. Now profit share is always in a ratio, and that ratio is obtained by these 2. C3, T3. इसका जो भी रेशियो आएगा उसी रेशियो में you have to divide your profit.
I'm talking about profit, huh? Not the revenue. There is a difference between profit and revenue, okay? सो फाइनल जो भी पैसा आएगा उसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल एंड टाइम. ओके, समटाइम्स if time is not given, do not consider time. So it will be just C1, C2 and C3. जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? मैंने सिर्फ 50 रुपए इन्वेस्ट किया एंड माई पार्टनर हैज इन्वेस्टेड 100 रुपीज. सो अगर 100 रुपए प्रॉफिट मिलता है तो आई कैन नॉट से दैट यू गिव मी आई विल टेक 50 रुपीज प्रॉफिट एंड यू टेक 50 रुपीज प्रॉफिट. ऐसा नहीं हो सकता. मैंने जितना इन्वेस्ट किया है और उसने जितना इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में द प्रॉफिट विल ऑल्सो बी डिवाइडेड. बस इतना ही. दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट वी हैव इन पार्टनरशिप. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल इनटू टाइम is nothing but your profit share. Am I clear on this, everyone? Yes or no? Yes, sir. Okay, so let us try to solve some questions. Anu and Renu are partners in a business. ये देखो, अनु इन्वेस्ट ₹5,000 फॉर अ कंप्लीट ईयर, पूरे साल भर के लिए. तो अनु का ये हो गया C1, ये हो गया T1. रेनु इन्वेस्ट 2,500. रेनु इन्वेस्ट 2,500 फॉर 6 months. ये हो गया उसके लिए T2. व्हाट इज रेनु शेयर इफ दे अर्न 240 प्रॉफिट? तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि हाउ विल द प्रॉफिट शेयर बी. वो रेशियो निकालना पड़ेगा. हाउ टू फाइंड द रेशियो? C1 T1 5,000 into 1 year means it is 12 months. Why am I writing 12 months? ऐसा कुछ रीजन है क्या 12 months लिखने का? Is there any reason for it? Yes, sir. अदर वैल्यू इज इन मंथ्स, इसीलिए 12 महीने में लिखा है मैंने. एक साल मतलब 12 महीना. ओके, बिकॉज रेशियो में दोनों वैल्यूज, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए ना. सो 2,500 into 6. कैन यू टेल मी द रेशियो नाउ? Is it 2:1 or 4:1? 4:1. 4:1. तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा 4:1 में डिवाइड होगा. मतलब 5 भाग का 4 भाग ये किसको मिलेगा? अनु को मिलेगा. ओके, सो वी वांट रेणु का शेयर. तो रेणु का शेयर कितना है? इट इज 1 आउट ऑफ टोटल 5 है ना. 4 + 1 5 ऑफ 240. So the answer is 48. Can you solve the next question? Next question में we want the profit का ratio only. C. देखो, रेशियो तक ही निकालना है, ये वाला पार्ट नहीं निकालना है. एंड द टाइम क्या दिया हुआ है? इज द टाइम गिवन? No, sir. नॉट गिवन. तो टेक द कैपिटल्स ओनली. देखो, सब में 0 है. सेम नंबर ऑफ zeros आर देयर. तो योर आंसर विल बी 16, 15 एंड 23 बिकॉज 0 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. I hope it is clear with everyone. Yes, sir. Now try these 2 questions.
A. 12, 18 and 1. Yes, sir. अगर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो पूरा टाइम तो ए रहेगा, राइट? वो स्टार्ट से लेकर एंड तक है, मींस ए हैज गिवन कंप्लीट 12 मंथ्स, राइट? तो 20,000 इंटू 12. बट डोंट यू थिंक बी ने 3 महीने के बाद ज्वाइन किया है? कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम बी हैज इन्वेस्टेड? 9 months. 9 months, yes. What about C? Only 2 months. Only 2 months. So this is your ratio. Now, one good thing about partnership is most of the time you'll see big numbers, but again, big numbers के लिए the zeros are very much in common. So you can cancel the zeros. 4 zeros common है सब में, देखो. Okay. So I think I can cancel 2 as well. 2 to the 4. So answer is 12 is to 18 is to 1. Okay, so they have asked ratio only. So I'll stop right there. So now next question. Move to the next question. A and B entered into a partnership investing rupees itna and itna. So this is your starting C1 and C2. After 3 months, A withdrew rupees 5,000. अच्छा, don't you think A ने ना साल भर के लिए 16,000 इन्वेस्ट नहीं किया है? Are you getting my point? So Yes, sir. A has invested 16,000. ये 16,000 कब चेंज हुआ? 3 महीने के बाद. Means the first 3 months he has 16,000 investment. उसके बाद क्या कर दिया उसने? 5,000 विड्रॉ कर दिया. तो बचे हुए how many months are remaining? 9 months. 9 months. So for 9 months the investment will be 11,000. Same case, can you find out for B? 12,000 for the first 3 months and B has withdrawn. अच्छा, B ने ना 5,000 और भर दिए. So what will be the investment for B now? 17,000. 17,000. Yes, correct. For the remaining 9 months. After 3 months more, मतलब और अब कितने महीने हो गए और फिर? Yes, after 6 months C has joined. पहले के 3 महीने में A और B ने चेंजेस किया, उसके 3 महीने के बाद C joins. तो मतलब C का इन्वेस्टमेंट विल बी ओनली फॉर द रिमेनिंग 6 months. That is 21,000. नाउ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. दिस इज 16 इंटू 3 विच इज 48. 11 इंटू 9 that is 99. So 99 plus 48 is 147,000. For this it is 12 into 3 36. 17 into 9 is 153. 153 plus 36, how much it is? 21 into 6. How much is 21 into 6? Now, if you take the simplification route, अभी ratio निकालो, A, B, C का ratio. When you take the ratio, all the zeros will be cancelled. So we have 147, 189, 126. Now looking at 147, I think this can be cancelled by 7. 7 से cancel होगा ये? Please do the cancellation. 721, 7 to 14,
7 7 49, 7 1 7 7 8 56. I think I can still cancel further by 3. 3 7 3 9 3 6. So this is my final ratio. तो जो भी पैसा आएगा, the profit they will divide in this ratio. What they have asked, the share of B exceeds that of C. Exceeds का मतलब B और C में क्या difference है ना? So the difference is nothing but 3 out of what is the total profit share? 7 plus 9 plus 6, that gives us कितना आता है सब? 24. 22. No one said. 22. D is the right answer. D. 3600. Yes, sir. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट, तो आंसर इज 3600. पार्टनरशिप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ओनली प्रॉब्लम इज द कैलकुलेशन पार्ट. सो दिक्कत है. ओके, एंड यू विल गेट वेरी रेयर क्वेश्चंस ऑन पार्टनरशिप्स. So try these two questions. C, sir. 10:27. Yes, sir. ओके, ये कैपिटल C1 C2 का इन्वेस्टमेंट है. तो C1 अच्छा इन्वेस्टेड इतना इन ए बिजनेस, तो C1 is to C2 का वैल्यू विल बी 6:5. At the end, Hari received 4/9 of the total profit. Can you tell me, अगर हरी को 4/9 मिला है, 4/9 of the profit means what? प्रॉफिट के 9 भाग में से 4 भाग हरी को मिला है. तो कैन यू टेल मी सुधाकर को कितना मिलना चाहिए? 5. 5. So this is the profit share. अब कैपिटल का शेयर इज 6:5. कैन यू टेल मी टाइम का शेयर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालते हो? टाइम इंटू दिस इज नथिंग बट 4. तो इसको कैसे निकालोगे? टाइम इंटू कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना? तो हाउ विल यू फाइंड टाइम? हाँ, 4 डिवाइडेड बाई 6. और दूसरे साइड में क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाई 5. So can you simplify this? 2/3 is to 1. So answer is 2:3.
I hope you have understood this one. Yes, sir. So try the next question in a similar way. मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज C1T1 is to C2T2. Is it done? ₹12,000 इन्वेस्ट किया है, लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी छोड़ दी, पैसा निकाल दिया। अब देखो X मंथ के लिए इफ ही इन्वेस्ट हिज मनी, नेक्स्ट इज सुनील टुक ओवर बिजनेस एंड सुनील का इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 15,000। तो कैन यू टेल मी बचे हुए कितने मंथ्स हैं? 12 minus X. 12 minus X, यस करेक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 0 0 कैंसल, 3 5 times, 3 4 times, so the ratio will be 4x is to 5 into 12 minus x. ओके, ये प्रॉफिट का शेयर है। और क्या दिया हुआ है? एक साल के बाद टोटल प्रॉफिट इतना है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट इज 9900, जिसमें से सुमीत को कितना मिला है? 4400। एक बात बताओ, सुमीत को इतना मिला है तो सुनील को कितना मिला होगा? 5500. 5500, सो दैट इज फॉर सुनील। ये भी तो प्रॉफिट शेयर ही है, मतलब द रेशियो इज 4:5। ये भी प्रॉफिट शेयर का रेशियो है, ये भी प्रॉफिट शेयर का रेशियो है। कैन वी नाउ इक्वेट दिस टू दिस 4x by 5 into 12 minus x is exactly same as 4/5. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 4 gets cancelled, 5 5 gets cancelled. Are you getting 6 months? Yes, sir. तो 6 महीने के बाद सुमीत ने बिजनेस छोड़ दिया और सुनील ने टुक ओवर किया बिजनेस। ओके, सो प्रैक्टिस ओनली दीज टाइप्स, इतना ही प्रैक्टिस करो। ओके, सो लेट मी सी इफ आई पुट फ्यू मोर क्वेश्चंस। नो, ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? कैसे हमने सारे वेराइटीज देखे इसमें, वेयर मनी इज गिवन बट टाइम इज नॉट गिवन, है ना? वेयर मनी एंड टाइम बोथ आर गिवन। अगेन वेयर मनी एंड टाइम आर गिवन, बट अगेन डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन। क्लियर? उसके बाद प्रॉफिट शेयर इज गिवन एंड कैपिटल इज गिवन। उसमें से टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव सीन हियर। ओके,
प्रॉफिट शेयर इज गिवन, कैपिटल इज गिवन, टाइम कैसे निकालेंगे? ओके, सो दिस इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड. इतना ही प्रैक्टिस करो ऑन पार्टनरशिप्स. Okay, you'll get very rarely, yeah. And if you get questions in partnership, these are the only limited number of questions. So moving forward to a new topic. Just a minute. Okay, so the new topic is set theory. Please understand this question and understand this formula and the discussion very carefully. Okay, we will try to solve. हाँ, सर वो प्रॉफिट का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे. नहीं, वेरी रेयरली. अगर आपने 10 कंपनी में अपेयर किया ना, 10 में से 1-2 कंपनीज में आएंगे. बट अगेन चांसेस नहीं ले सकते, इसीलिए सिखा रहे हैं. और आया तो उसी टाइप का ही आएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं. Okay, now set theory is another important one. So set theory, it says, पहले तो डिस्कस करते हैं set क्या होता है. So set is nothing but collection of well defined objects. Now when I say well defined, ऐसा ग्रुप जिसका कोई डेफिनेशन हो, जिसको हम बोल सकते हैं हाँ ये. अब अगर मैं ऐसे लिखूं बैड एंड गुड बिहेवियर, ठीक है, एंड लेट्स से अ कार एंड लेट्स से लिक्विड. अब इसको क्या बोलोगे? इस ग्रुप का क्या नाम दोगे? तो कैन यू डिफाइन दिस ग्रुप? द आंसर इज नो. ठीक है, अगर मैं बोलूं ओके फाइन, if I say let's say soft spoken, well mannered, है ना, let's say good behavior, kind hearted, ठीक है, all these are nothing but good qualities, है ना, qualities of a person. So I can define them. So it's a सर, definition. आप जो लिखते हो नहीं दिख रहा है सर. Are you sure? सबको नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है. नहीं दिख रहा यस सर, है? आपकी स्क्रीन स्टिक हो गई. अच्छा, रुको. Is No, it sir. visible? Still not visible? विजिबल है सर, विजिबल है. Okay. So, अच्छा, let me erase this. Let me write. अच्छा, erase नहीं होगा. Okay. Now let's say let's talk about group of cars. है ना? When I say BMW, है ना, Volkswagen, and then Tata, and let's say let's say Kia. So when I write like this, okay, it's a group of what? Group of car कार. brands, right? है ना, कार के brands है ना, या car makers you can say, correct. Now when I say bat, ball, stumps, then gloves. So all these are what? A group of cricket kits, है ना, cricket के gears हैं. Or you can say, let's talk about pen, pencil,
इरेजर, है ना, देन sharpener, all these are what group of stationaries. Then Samsung, Nokia, right, then Oppo, and so on. These are what? These are group of phone ke brands. Clear? So whenever you write something, whenever you look at a collection or a group जिसका proper definition हो, then we call that group as a set. Okay, so set is nothing but a collection of well-defined objects. Now when we write inside a curly brackets, this is a way to represent a set. इसको हम बोलते हैं elements of a set. Okay, so a set can have many elements. When I say I have no elements, इस एक set के अंदर कोई element है ही नहीं, we call this set as null set. एक set के अंदर एक ही element है, we call this as सिर्फ नाम important है. You will never get questions on this type. Singleton set. If I say if I have limited number of elements, we call this as finite set. But if I have unlimited number of elements, we call this as infinite set. So we will be mostly dealing with these first three set. Infinite set हम लोग deal नहीं करेंगे, हमारे लिए not necessary. Okay, so far n of a means number of elements in a. Okay, so first question को अगर हम n of a दिखाएं तो n of a is nothing but 0. Second example के लिए n of a is 1. Third example के लिए n of a is 26. Fourth example के लिए n of a would be infinity. Okay, so n of a means what? Number of elements in a. Okay, now next is when I say, अच्छा, let me write some. Okay, now look at this. When I say A and B are two sets, A and B are two sets. अच्छा, एक ही सेट लेते हैं. पहले सेट A लेते हैं, 1, 2 and 3. Okay, 1, 2, 3. So how many elements are there? 3 elements. Okay, now इसमें ना we need to figure out what is a subset. Subset क्या होता है? Subsets are nothing but इसी सेट के ही पार्ट और से बाई प्रोडक्ट you can say. One is also a part of set A, so this set is nothing but called as subset. Okay, father and child ऐसे सोचो. So अगर मेरे पास एक सेट A है, set A is 1, 2, 3 and elements, तो मेरे पास how many subsets can I have? 1, 2, ये भी इसी का ही पार्ट है, 1, 3 and so on. So all these are nothing but subsets. When I say how many subsets, number of subsets कितने possible हैं is equals to 2 raised to 3, which is 8. Okay, remember always कि null set is a subset of every set. So if there are 4 elements, there will be 2 raised to power 4, यानी 16 subsets. Okay, so let's say B has elements 1, 2, 3, 4, 5. अब मुझे बताओ A और B में से कौन किसका सबसेट है? A is a subset of B. A is a subset of B. Yes, A का A जो एलिमेंट है वो पूरा का पूरा B में मिल रहा है.
So we write like this: A is a subset of B. ठीक है. रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम लोग कैसे सोचेंगे? अगर मैं बोलूं कॉलेज में ना, हमारे कॉलेज में 10 स्टूडेंट है जो कि चाय पीते हैं. 10 स्टूडेंट्स चाय पीते हैं, बाकी कोई नहीं पीता. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स चाय पीते हैं. तो वो जो 10 स्टूडेंट है वो पूरे कॉलेज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सबसेट हैं. ठीक है, उन 10 स्टूडेंट्स को एक सेट के अंदर लिखोगे तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट जो है वो पूरे कॉलेज को एक सेट रिप्रेजेंट करोगे तो कॉलेज का सबसेट है वो. कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, सो पूरे कॉलेज का कंप्यूटर साइंस इज अ सबसेट. ओके, नाउ अगर इफ आई से कॉलेज का सबसेट, देयर आर वेरी मेनी एलिमेंट्स. ठीक है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, देन ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट इज आल्सो देयर, देन लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इज देयर. Okay, and then electrical engineering department is there, civil engineering is there. So all these departments are the subsets of pure college. Okay, now वर्ल्ड में जितने भी सबसेट हैं, वर्ल्ड में जितने भी सबसेट हैं उन सारे सेट को, मतलब वर्ल्ड, ऐसे सोचो कि वर्ल्ड में जितने सेट हैं उन सारे सेट को कंबाइन करके एक सेट के अंदर रखो तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट. सो यूनिवर्सल सेट, वर्ल्ड में जितने भी सेट है वो इसी एक सेट का सबसेट है, दैट विच सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट. वैसे इतना पूछेंगे नहीं, बट फिर भी फॉर अ जनरल नॉलेज नो इट. Okay, so this is all about subset, number of elements, how many subsets are there, and what is a set. Now अभी आते हैं असली पॉइंट पे, that is operations on a set. यहाँ से असली खेल चालू. Now operations means what? Normally maths में हम लोग क्या करते हैं? प्लस माइनस, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन. इन सेट देयर इज नो प्लस और माइनस. दो सेट को आप ऐड नहीं कर सकते, तो दो सेट को ऐड करें तो करें कैसे? सो वी हैव फर्स्ट वन वी कॉल्ड एज अ यूनियन ऑफ सेट. अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एंड इट इज गिवन बाय ए यूनियन बी. ये होता है सेट ए और बी को कंबाइन कर देना, एडिशन जैसा ही सोच लो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सेट ए हैज 1 2 3, सेट बी हैज 2 3 4. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड ए यूनियन बी, मैं क्या करूंगा? ऑल द एलिमेंट्स इन ए विल बी देयर, all the elements of B will also be there, but without repetition. values को repeat नहीं करना है. कल याद है हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर भी है, डिविजिबल बाय 3 भी है, 9 एंड 36 को ज़्यादा मतलब 2 बार काउंट कर लिया था, इसीलिए माइनस किया था. सो विल स्टडी दैट हियर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज A union B. We are writing all elements in A, all elements in B, okay, and it is called as A union B. Okay, now in these two set you see 2 and 3 are common to both. 2 and 3 are common to both. तो इसीलिए A union B, देखो A के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है. B के पास 3 एलिमेंट्स हैं. तो अगर मैं नंबर वाइज ऐड करता तो 3 + 3 should have been 6. There should have been 6 elements, but A union B में 6 नहीं है, है ना? So A union B में if there is something in common, it will not be just A plus B. Okay. Now look at the second example. A equals to 1 2 3 and B equals to 1 2 3. What will be A union B?
It will be 1, 2, 1, 2, 3. 3. exactly same. So जब मैं बोलूंगा कि ए और ए यूनियन बी करता हूं तो मिनिमम कम से कम कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, कम से कम कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज दोनों में से जो लार्जेस्ट है वही आएगा. से फॉर एग्जांपल ए का सेट इज 1,2 बट बी का सेट इज 1,2, 3 एंड 4. अब देखो जब मैं इसको A यूनियन B लिख रहा हूं, व्हेन आई एम राइटिंग A यूनियन B 1, 2, 3, 4 which is exactly B. तो A यूनियन B में जब एक पूरा एलिमेंट एक सेट में ऑलरेडी आ जाता है तो मिनिमम आपको वो बड़ा वाला सेट तो लिखना ही पड़ेगा. तो A यूनियन B का मिनिमम वैल्यू जो है वो दोनों में से बड़ा वाला जो सेट रहेगा वही मिनिमम वैल्यू रहेगा. ओके, मैक्सिमम ना सर, मिनिमम. मिनिमम. अब बताओ मैक्सिमम कब होगा? व्हेन विल A यूनियन B बी मैक्सिमम? जब दोनों सेट के बीच में सी 1, 3, 4 एंड दिस इज 1, 4, 1, 5 एंड 6. अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है तो मुझे सॉरी इसको लिख देता हूँ. सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है तो मैक्सिमम ए यूनियन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है. ओके, सो रिमेंबर व्हेन minimum of A union B, when A union B will be minimum when A is a subset of B, है ना? A subset of B या B subset of A, दोनों में से कोई भी एक सबसेट होगा तो मैक्सिमम कब होगा? when will be the maximum? A union B मैक्सिमम कब होगा? जब no elements are common, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आपको सब के सब लिखने पड़ेंगे. इट इज लाइक एलसीएम. एलसीएम में क्या करते हो? कॉमन भी लिखते हो, अनकॉमन भी लिखते हो, है ना? तो जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो आपको सारे के सारे नंबर्स लिखने पड़ते हैं, है ना? से फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा रिलेशन बता रहा हूँ. 8 और 12 का एलसीएम कैसे निकालते हो? हाउ डू यू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 8 and 12? You say 8 is nothing but 4 into 3, 12 is nothing but 8 is 4 into 2, 12 is 4 into 3. यहाँ पे 4 तो कॉमन है ही, बाकी जो बचे हैं उसको भी लिखना पड़ता है ना. Are you getting this? लेकिन if there is nothing in common, say let's say 9 और 16 का एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? 9 into 16 करना पड़ेगा, सब के सब लिखना पड़ेगा. अगर कॉमन है तो कॉमन को रिपीट नहीं करते हो. 4 and 4 में से आप एक ही बार लिखते हो 4. सो सिमिलर टू दैट, व्हेनेवर देयर इज समथिंग इन कॉमन, तो वो आपका मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम ए यूनियन बी नहीं देगा. मैक्सिमम ए यूनियन बी कब होगा? जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन ए यूनियन बी विल बी मैक्सिमम. ओके, सो ये 2 पॉइंट्स प्लीज लिख लो. नेक्स्ट, intersection. Now as the name suggests, intersection is nothing but common elements Common. only. So A is 1, 2, 3, B is 2, 3 and 4. So what will be A union B? A union B is 1, 2, 3, 4.
सिर्फ 2 and 3, राइट? सिर्फ 2 और 3 कॉमन है। सर आपने यूनियन लिखा है। अच्छा, सॉरी, इंटरसेक्शन इज गिवन बाय दिस, उल्टा यू, है ना? सो रिमेंबर वन थिंग, दिस इज कॉल्ड एज ईदर और, ठीक है? दिस इज अ एंड कंडीशन। नाउ कैन यू टेल मी, जस्ट सोच के बताना, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू, कम से कम क्या वैल्यू आ सकता है? कम से कम मतलब कब होगा? कम से कम एकदम कम कब होगा? जब कोई कॉमन नहीं होगा दोनों में। अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो इट विल बी अ नल सेट। ओके, नल सेट मीन्स देयर आर 0 एलिमेंट्स। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम एक वैल्यू, सेट दूसरे का सबसेट होगा तब। हाँ, जब सबसेट होगा तब होगा। से A is a subset of B, तो maximum value of A intersection B will be A. For example, A का वैल्यू मैंने लिख दिया 1 2 3, B का वैल्यू मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 and 6। देखो कॉमन क्या है? 1 2 3। इससे ज्यादा और क्या ही मैक्सिमम कॉमन हो सकता है? अगर मैंने बोला 5 लोग कॉफी पीते हैं, है ना? एक कॉलेज है जहां पे 5 पीपल आर देयर हु ड्रिंक कॉफी एंड देयर आर 10 पीपल हु ड्रिंक टी। अब मुझे बताओ, कॉफी भी पीता है, चाय भी पीता है, ऐसे मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 0। हाँ, मैक्सिमम। अगर मैंने बोला 5 लोग कॉफी पीते हैं, है ना, बाकी कोई कॉफी पीता ही नहीं है। अगर मैंने बोला चाय पीने वाले 10 लोग हैं, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि चाय भी पीता है कॉफी भी पीता है, ऐसे मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? सिर्फ इन दोनों डेटा को देखो। आप पांच और 10 में मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं? 5 सर। 5 ओनली। हाँ, अगर मैं बोलूं ये पांचों के पांचों चाय भी पीता है, तो आई कैन से चाय और कॉफी के कॉमन वाले एलिमेंट्स 5 हैं। आपको 10 लोग 5 में कॉमन नहीं निकाल सकते, है ना? अगर मैं बोलूं चाय पीने वाले 10 लोग हैं और वो कॉफी भी पीते हैं, तो आपका कॉफी पीने वाले 5 लोग नहीं रहेंगे, फिर इट विल बी 10 नाउ। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? Yes, यस sir. सर। So next is the Venn diagram. अच्छा, इसी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक और चीज है। When I write A minus B, A minus B लिखता हूँ means it is only A, or I can say A but not B, ठीक है? So अगर मैं इस एलिमेंट को सर्च करूँ, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो A में है लेकिन B में नहीं है? Look at this example. Take the same example. 1 सर। Yes, A minus B is the element 1. 1 ठीक है? So now all these are nothing but elements के ऊपर है. Now question they will not be asking based on this question, on this type, but ये जो minimum maximum है, please ये ध्यान में रखना, maximum intersection जब सबसेट होगा जो कम वाला वैल्यू है, ओके? और इसमें मैक्सिमम जो है वो हायर वाला वैल्यू रहता है। ओके, सो लेट मी, आई हैव टू टेक वन मोर
स्लाइड, हाँ, अभी जो लिखने जा रहा हूं प्लीज प्लीज नोट इट डाउन. द फर्स्ट फॉर्मूला ए यूनियन बी. जब मैं यहाँ पे साइड में n लिख रहा हूँ, what does it mean? It is the number of Number of- elements. Yes, number of elements in A union B. A union B का मतलब क्या है? A को बिलोंग किया तो भी चलेगा, B को बिलोंग किया तो भी चलेगा, या दोनों में कॉमन है तो भी चलेगा. That is the meaning of A union B. A में आया तो भी चलेगा, B में आया तो भी चलेगा. So it is given by n of A plus n of B minus n of A intersection B. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, नाउ इसी फॉर्मूला को वी विल हैव टू राइट इन अ वेन डायग्राम. यू अंडरस्टैंड वेन डायग्राम एवरीवन? Yes, sir. नाम नहीं सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेन डायग्राम इज नथिंग बट आप सेट को बाउंड्री, एक सर्कल, एक डायग्राम के थ्रू समझाना है. नाउ दिस रेक्टेंगल वी कॉल इट एज द यूनिवर्सल सेट. मतलब ये सेट ए बी का भी बाप है. ओके, आई कैन से सेट ए एंड सेट बी आर दी सबसेट ऑफ दिस सेट. इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. लुक एट दिस, आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल which is representing set A, है ना. I am drawing another circle which represents set B. Can anyone tell me, बीच में जो है एक सर्कल, एक एरिया, एक पोर्शन है, देखो, which is this portion. Don't you think this portion is have common to both A and B? Yes, sir. So इसे कहते हैं A intersection B. ये पोर्शन का मतलब क्या? लेट मी नेम इट एज रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3 एंड रीजन नंबर 4. अब मुझे बताओ, रीजन नंबर 2 क्या डिनोट कर रहा है? द कॉमन विच इज इंटरसेक्शन. कैन एनीवन टेल मी रीजन नंबर 1 क्या है? Only A, not B. हाँ, प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी. ठीक है, सो रीजन नंबर 1 इज नथिंग बट ए माइनस बी. नाउ ए माइनस बी मतलब कैसे फिगर आउट करेंगे? अगर ए का टोटल वैल्यू में से अगर इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, ये वाला वैल्यू है ना, ये टोटल, अगर मैं ऐसा बोलूं 10 लोग चाय पीते हैं जिसमें से 5 लोग कॉफी भी पीते हैं. 10 लोग चाय पीते हैं जिसमें से 5 लोग कॉफी भी पीते हैं, तो सिर्फ चाय पीने वाले कितने लोग हो गए? 5. यस, तो वो 5 कैसे फाइंड आउट किया? 10 माइनस 5. ठीक है, सेट ए माइनस सेट ए इंटरसेक्शन बी. अगर आप टोटल में से कॉमन वाले हटा दो तो बचे हुए अनकॉमन रहेंगे. सेम केस, अगर आप बी का निकालना है, ओनली बी, तो बी में से कॉमन वाला पार्ट हटा दो. ठीक है, सो नाउ रीजन नंबर 1 plus region number 2 plus region number 3 means common plus the remaining uncommon is nothing but your A union B. ठीक है, so always remember two set के diagrams ऐसे दिखते हैं. Now what is region number 4? region number 4 क्या डिनोट करता है? Universal. हाँ, अच्छा, only 4, neither A, neither B. हाँ, नीदर ए नॉर बी, मतलब ये सर्कल के बाहर है ना, ना ही ए को बिलोंग करता है ना ही बी को बिलोंग करता है.
ठीक है, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं. दिस पोर्शन इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी के बाहर वाले एरिया. अगर मैं ऐसे बोलूं, ऐसे 100 में से 50, लेट्स से आउट ऑफ 100 70 पीपल ड्रिंक ईदर टी और कॉफी. 70 लोग ऐसे हैं जो चाय या तो कॉफी पीते ही हैं. तो दैट 30 रिमेनिंग 30 इज नथिंग बट दिस पोर्शन who drinks neither tea nor coffee. Okay, so this is for a 2 set. So always remember circle ऐसे draw किया जाता है. Next we'll go for 3 set. 3 set वाला again very important. There will be only 2 types. ये दो फॉर्मूले में ही क्वेश्चन पूछेंगे. So always remember what happens when we have 3 set. 3 सेट के लिए फॉर्म आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज फॉर्मूला, ओके, बट फिर भी जानने में कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज नो हार्म इन नोइंग द फॉर्मूला. प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. Sorry, it should be intersection, not plus. Now, अब याद कैसे करें? How do I memorize this? It becomes difficult. As simple as that. पहले क्या करना है? तीनों ABC को लिखो, फिर सर वो है ना A प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी. हाँ, मतलब वैसा कुछ मेमोराइज करना है. ABC, फिर पेयर जोड़े बनाओ, AB BC CA, फिर तीनों को एक साथ लिखो. पहले क्या लिखा मैंने? सिंगल सिंगल लिखा, फिर डबल डबल लिखा और तीनों को एक साथ लिखा. आर यू गेटिंग दिस? ऐसे कुछ मेमोराइज करो. नाउ यू माइट कंफ्यूज विद द माइनस साइन. माइनस साइन सिर्फ 2 वाले में आते हैं, बाकी किसी में नहीं. अंडरस्टूड नाउ कैसे मेमोराइज करना है? यस सर. Okay, now I would recommend memorize नहीं किया तो भी चलेगा, because for 3 set I would always recommend you to use Venn diagram. मैं बोलूँ कि 3 सेट का कैसे ड्रॉ करेंगे? So I have to draw a bit, larger rectangle ना. 3 रेक्टेंगल वो बनेगा सर्कल. हाँ. जिसका कॉमन. Yes, there will be one common area. अब सर्कल ड्रॉ करते वक्त ना थोड़ा सा बल्जी टाइप ड्रॉ करना, पूरा प्योर सर्कल मत करना. थोड़ा सा हल्का सा ओवल शेप, मतलब एलिप्स टाइप. So there will be how many regions? So let me change the ink for better understanding. Let me say red. So region number 1, region number 2, region number 3, region number 4, फिर 5, 6, 7 and 8. अब मुझे सोच के बताना, दिस इज सेट A, सेट B and C. What is region number 1 defining? Region number 1 क्या मीन कर रहा है ये? इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. करेक्ट, मतलब तीनों में कॉमन है. What about region number 2? A intersection B. ए इंटरसेक्शन बी. ना, A इंटरसेक्शन B तो है, लेकिन माइनस कॉमन ऑल. हाँ, A इंटरसेक्शन B क्या होता है? ये देखो, A इंटरसेक्शन B, ये पूरा ये रीजन आता है, रीजन 1 प्लस रीजन 2. ठीक है, याद रखना, A का सर्कल और B का सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज रीजन 1 एंड 2. तो मुझे रीजन 2 फाइंड आउट करना है, तो मतलब A इंटरसेक्शन B में से रीजन 1 को माइनस करना पड़ेगा ना. ठीक है, सो रीजन 2 इंडिकेट्स, अगर मुझे लिटरली सोचना है इसका मतलब क्या है, दैट इज ओनली A
and B, but not C. A और B में तो कॉमन है, बट C के साथ वो कॉमन नहीं है. But my point, everyone. Yes or no? Yes, sir. हाँ. सिमिलरली अगर मैं ये रीजन नंबर 3 की बात करूं, तो रीजन नंबर 3 जो है, दिस इज कॉमन टू ए, बी एंड सी. बी एंड सी में कॉमन है, लेकिन ये ए के साथ कॉमन नहीं है. -3. हाँ, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब आपको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिमिलर टू दिस, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कॉमन वाला पार्ट. मतलब बी इंटरसेक्शन सी का रीजन क्या होता है, ये वाला रीजन बी इंटरसेक्शन सी है. तो अगर मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट फाइंड करना है, तो बी इंटरसेक्शन सी में से 1 वाला पार्ट माइनस कर दो, रिमूव दैट पार्ट. Am I clear on this? Yes, sir. Okay. Now, how to find region number 5? फिफ्थ वाला रीजन कैसे फाइंड आउट करें? रीजन नंबर 5 मीन्स ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए. यस, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल ए में से रीजन And A नंबर, minus हाँ, रीजन B नंबर, intersection B हाँ, और 3A intersection B हाँ, और मतलब टोटल में से ये रीजन नंबर 1 2 3 माइनस करना पड़ेगा ना. Yes, sir. यस सर. हाँ, ये ए का जो टोटल सर्कल है उसमें से 1 2 3 रीजन माइनस कर दो, तो बचेंगे सिर्फ फिफ्थ वाला रीजन. ठीक है, एक मैप की तरह ही सोचो. सो दिस इज हाउ टू फाइंड ओनली ए. ठीक है. सो सिमिलरली ओनली बी, ओनली सी को भी फाइंड कर सकते हैं. नाउ रीजन नंबर 8, रीजन नंबर 8 क्या डिफाइन करता है? Neither A nor B nor C. मैं भी नहीं. करेक्ट. तो इट इज नथिंग बट टोटल में से ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस कर दो, तो बचेंगे नीदर ए नॉर बी नॉर सी. ओके. सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, ऑलवेज फिल रीजन 1. अगर नहीं दिया है तो अलग बात है. हाँ, रीजन नंबर 1 हमेशा सबसे पहले यही फिलअप करना, ऑलवेज. फिर रीजन नंबर 2 आएगा, उसके बाद रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4. उसके बाद यू ट्राई टू फिगर आउट रीजन नंबर 5, रीजन नंबर 6 एंड रीजन नंबर 7. ठीक है, सीक्वेंस पता चल गया. पहले फर्स्ट यानी कॉमन टू ऑल द 3 को फाइंड आउट करना है, उसके बाद बाकी का धीरे धीरे फिलअप करना है. ओके. सो आई विल ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस इज 2 सेट, ये 2 सेट है और ये 3 सेट है. सो यू विल गेट ओनली दिस टाइप. पहला क्वेश्चन, you try to answer this. Seven. 7 मिनिमम कौन सा है? Four. दोनों में से जो लार्जर है. हाँ, 4. 4 कैसे आएगा? यूनियन है ना, यूनियन में तो सब लिखना पड़ता है. 11. आंसर इज 11. यस. अगर दोनों में नहीं, यहाँ पे मिनिमम बोला है ना, मिनिमम 11 नहीं आएगा. प्लीज ओपन दैट कंडीशन. अभी देखो मैंने जहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम लिखा है. Minimum 7 होगा ना सर? यस, मिनिमम इज 7. यूनियन है ना, यूनियन मतलब कॉमन प्लस अनकॉमन दोनों लिखने पड़ेंगे. ये मिनिमम कब होगा? जब पूरा का पूरा ए बी में आ जाता है. बी में 4 एलिमेंट्स है ना,
अगर यही 4 एलिमेंट्स इसी 7 एलिमेंट्स में कॉमन आ गए तो मतलब ए को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको 7 के 7 एलिमेंट्स ये एंड कब होगा फिर? मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों ही मतलब दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंस होते हैं तो। यस, तो मैक्सिमम कब होगा? नो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब आपको सब के सब एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। 11. आंसर इज 11। ठीक है। हाँ, अगर मैंने इसके बदले ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया तो ए इंटरसेक्शन बी का एकदम मिनिमम वैल्यू कब होता है? 0. 0। यस, कोई नहीं मैच करता। हाँ, जब कोई नो कॉमन एलिमेंट होगा तो नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा फिर? ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होगा? इन दोनों का मिनिमम ऑफ ए और बी। हाँ, 4 एलिमेंट्स। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन। Common. इसमें हाँ, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 7 है, तो मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं? 4 ही कॉमन होंगे फिर, हाँ, है ना? सो दिस इज अ बेसिक आइडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले सेट में आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी सेट आर देयर। 2 सेट का है या 3 सेट का है? प्लीज आइडेंटिफाई फर्स्ट। तेरे सेट का 3. कितना? 2 सेट्स है। 2 सेट। 30 monkeys went to a picnic, जिसमें से 25 ना बफेलोज को इरिटेट करते हैं, 20 इरिटेट काउस। तो सेट ए, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, मतलब 2 ही हैं। सो हाउ विल यू फाइंड ए यूनियन बी? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इज 25, बी इज 20। नाउ जैसे मुझे सुनने में आया दिस इज बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? कॉमन इंटरसेप्शन। कॉमन एलिमेंट, कॉमन, यस। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। आई गॉट 1 आंसर। तो टोटल कितने मंकीज गए थे? 30, यस। तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, तो ए इंटरसेक्शन बी वुड बी 45 माइनस 30, 15। तो कहने का मतलब ये है कि 30 काउज में से 25 चले गए थे बफेलोज को इरिटेट करने, 20 चले गए थे काउज को इरिटेट करने। अब बोलोगे कि मंकीज तो देयर आर ओनली 30, बफेलोज एंड काउज मिला के इट इज तो 45। दैट मीन्स इनमें से 15 ऐसे हैं which is common to both, जो cows को भी irritate करते हैं, buffaloes को भी irritate करते हैं। So if I draw the Venn diagram like this, common is 15, cows वाले कितने, buffaloes वाले कितने? It is 25 and cows is 20. Can you tell me how much will be only buffaloes? How much will be only cow? फिर ये हो जाएगा 10, 5 cows. 5, 10 yes. हाँ, मतलब 20 काउस जो गए थे, 20 मंकीज जो गए थे काउस को इरिटेट करने, उसमें से 15 ऐसे काउ हैं जो बफेलोज को भी जाके इरिटेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आउट ऑफ 20 ओनली 5 monkeys are there who irritate buffaloes, who irritate only cows. ठीक है? So can you try to solve the next question?
सिमिलर वे में सॉल्व करो। 42 42, ओके, ये हो गया सेट 1, ये हो गया सेट 2। व्हाट डज दिस 11 रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। आंसर इज 21 plus 32 minus 11, which is 42. 42। Now next question is, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। And same formula will be used, please check. सर डी। डी। एक बार फिर से चेक करो। देखो इस बार परसेंट में दिया हुआ है नंबर्स। सेट ए, सेट बी, एंड ये रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो 63 प्लस 76 माइनस एक्स, ये परसेंट में है, मतलब दिस विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। सर कैन यू टेल मी ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? सर बी आएगा कैसे? 100%। यस, 100%। परसेंट में है ना, तो मैक्सिमम 100 ही हो सकता है। अब मुझे बताओ इसमें, कैन आई राइट लाइक दिस? इज इट पॉसिबल? मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी। मतलब या तो चीज या एप्पल खाने वाले लोग हैं, या दोनों खाने वाले लोग हैं, है ना? तो क्या इज इट नेसेसरी दैट ऑल द अमेरिकन्स लाइक चीज और एप्पल्स? नो। ऐसा कुछ लोग भी हो सकते हैं ना जिसको दोनों ही ना पसंद हो। या अब वैसा कोई है या नहीं है मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है ये टोटल 100 हो सकते हैं या 100 से कम हो सकते हैं, 100 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो इसीलिए x का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 39। ठीक है। नाउ x क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x मींस इंटरसेक्शन यानी कॉमन। मिनिमम अगर 39 कॉमन है तो कैन यू टेल मी मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है? 63। यस, 63%। इसीलिए आंसर कुछ ऐसा आया है। वैसे भी अगर ये ऑप्शन देखोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39, तो दैट इज ओनली वन ऑप्शन। बाकी सब में x लेस देन 39 है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टू सेट। I think two set can have few more examples are there. Try this one, these two. Try to solve using Venn diagram now. Formula से बहुत solve कर लिए. Try using Venn diagram.
5%। 5%? वेन डायग्राम से किया है कि कैसे किया है? तो सर सारे वेन डायग्राम से ही कर रहा हूँ, फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ट्राई टू मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग वेन डायग्राम, तो आंसर जल्दी आता है। 40% मैथ के लिए एनरोल किया, ओके, ये टोटल 40% है। 70% कितना है? इकोनॉमिक्स, एंड 15% कॉमन है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे कितने होंगे? 25, 25, एंड यहाँ पे 55, 55। हाँ, तो ये कितने हो गए टोटल? 95। 70, 95। तो बचे हुए परसेंट में है, इसलिए 5%। हाँ, करेक्ट, 5% इज करेक्ट। सो ट्राई द नेक्स्ट वन। ए 400 and 100। 400 and 100, okay. So there are again two set, bridge and rummy. So this is 200, this is 300 and 100 both. Okay, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 100, this will become 200. So total हो गए 400। एंड क्या पूछा है? ब्रिज ओनली, मतलब ये वाला पोर्शन। 400, 100. करेक्ट। सो नेक्स्ट में जाए, शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? yes, sir. Yes, sir. वेयर इज श्रीकांत टुडे? एब्सेंट है आज? श्रीकांत इज एब्सेंट। ओके, इस बार 3 सेट है, बी केयरफुल ना। 3 सेट में यूज वेन डायग्राम, ऑलवेज यूज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से जल्दी सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज वो फॉर्मूला लिखते लिखते सारा टाइम निकल जाएगा। 3 सेट ड्राइंग में थोड़ा सा बी केयरफुल, ओके। थोड़ा बल्जी वाला सेट बना, सर्कल ड्रॉ करना, समथिंग लाइक दिस। So let me name it as Times of India, फिर दूसरा क्या है? Telegraph, and the third one is the Hindu. So 240 families in all, okay. 240 फैमिलीज को न्यूज़पेपर जाता है, मीन्स ऑल द A यूनियन B यूनियन C इज 240, ओके। 90 बाय ऑन, अच्छा इस बार देखो 90 बाय ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, इट इज स्ट्रिक्टली गिवन, आपको कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो क्या मैं 90 यहाँ पे लिख सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? यस। 15 by the Times of India and the Telegraph. Times of India and Telegraph कहाँ पे है ये? वो Is it this one? yes, इसमें only नहीं बोला है, तो ये पूरा का पूरा 15 है। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा? जब तक मुझे ये वाला वैल्यू नहीं मिलेगा, सेंटर वाला वैल्यू, आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। जैसे यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे ओनली नहीं है। इफ इट इज ओनली ना, यहाँ पे ओनली लिखा रहता तो आई वुड हैव रिटन दिस नंबर, ओके। सो लुक फॉर अ नंबर विच इज कॉमन टू ऑल। सर्च करो पहले, कॉमन टू ऑल कितने हैं?
Look for a number which says common to all the three. जीरो। जीरो, यस। ऐसा कोई है ही नहीं जो तीनों न्यूज़पेपर खरीदता हो। तो ये जो 15 है ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा क्योंकि ये जीरो है। अगर ये जीरो नहीं, जैसे 1 या 2 होता तो दिस शुड बी 15 माइनस 1 और 2 व्हाटएवर इट इज। ओके, 100 बाय द टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ का टोटल इज 100, ये वाले पोर्शन कितने हैं इट इज स्टिल नॉट गिवन। 30 बाय द टेलीग्राफ इन हिंदू। टेलीग्राफ इन हिंदू का कॉमन इज ये वाला टोटल वैल्यू, बट इसमें जीरो है इसीलिए सारा 30 इसमें आ जाएगा। कैन यू फिगर आउट ये वाला ओनली टेलीग्राफ पोर्शन हाउ मच शुड इट बी? 55। 55, yes. नेक्स्ट 30 बाय ओनली। देखो इस बार ओनली बोला है, मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली हिंदू, सो दैट मीन्स आई विल राइट 30 हियर द हिंदू के लिए, ठीक है। सो कैन यू टेल मी ये वाला वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? तो सारे ऐड करके 240 में माइनस कर दो, आ जाएगा। हाँ करेक्ट, पूरे के पूरे टोटल इज 240। सो आप ऐड करो इसको। देखो ऐड करने के लिए ना हर एक को नंबर बाय नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे लार्जेस्ट वाला सर्कल है दैट इज 100 वाला सर्कल, मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि ये मुझे पता है। 100 प्लस अगर अलग अलग ऐड करो तो भी 100 ही आना है ना। 100 प्लस 90 दैट गिव्स अस 190। 190 प्लस 30 दैट इज 220। सो माइनस करोगे तो 20। सो दिस वैल्यू शुड बी 20 क्योंकि ये पूरा का पूरा 240 होना चाहिए। बाकी नंबर्स ऐड करके वी आर गेटिंग 220। क्लियर? So let us now answer the question. How many by the Times of India? Times of India का टोटल कितना है? 125। 125। 125। Yes, सिर्फ इन्हीं को ऐड करना है, करेक्ट। The next one, 55। नेक्स्ट वन 175। 500. yes. 175। इसको कंसिडर मत करना, कॉपी करते वक्त ये सब कॉपी हो चुका है। All the questions are from your textbook. How many people read only one? एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो कौन से हैं? 175। 175. Which newspaper is the most popular? टाइम्स ऑफ इंडिया। Times of India, क्योंकि इसका 125 circulations है। Which is लास्ट the वन द हिंदू। yes, क्योंकि इसके सबसे कम है। कितने हैं टोटल? 30 प्लस 30 प्लस 80। 80 आएगा आंसर, है ना। क्लियर? प्रोसेस समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. हाँ, सो ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। First identify how many sets are there. थ्री। 3 3 set। set है। हाँ, तो 3 सेट वाला वेन डायग्राम बनाओ। Yes.
इज इट डन? देखो, सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री. 10% पास. 15%. एक और चाहिए ना, रेशियो निकालना पड़ेगा. हाँ 50%. केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. क्या फिलअप करना है सबसे पहले? ऑल द थ्री. ऐसा देखो स्टेटमेंट कहाँ पे ऑल द थ्री ऐसा कुछ लिखा होगा. हाँ सर. ये और 10%. 10%. यस, ये हो गया 10, राइट. ये देखो ऑल ओनली 10% स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स. Yes, sir. सेट थ्योरी का ना एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना यही है, रैंडमली नंबर्स पढ़ो मिल जाता है. 15% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. 15% या तो मतलब यहाँ पे कितना लिखूं? ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वुड बी Yes. 5. हाँ, क्योंकि ये टोटल 15 है. 10 माइनस कर दो, 5 बचेगा. 20 केमिस्ट्री एंड मैथ्स. 20 है तो दिस शुड बी 10, क्योंकि ये टोटल 20 होना चाहिए. 25% मैथ्स एंड फिजिक्स. 25%. तो हाउ मच शैल आई राइट हियर? कितना लिखें यहाँ पे? 15. 15%. 15. यस. अब मुझे चाहिए क्या? फिजिक्स ओनली एंड मैथमेटिक्स ओनली. मतलब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आई वॉन्ट दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन. नाउ ये फाइंड आउट करने के लिए आई नीड टू हैव फिजिक्स का टोटल. फिजिक्स कितने हैं टोटल? 40%. 30%. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 30% तो लिख दिया है ना? टोटल 30 तो लिख दिया है. सो रिमेनिंग 10% यहाँ पे होगा, क्योंकि दिस टोटल शुड बी 40%. मैथ्स का टोटल कितना है? 55. कुछ भी करके ये सर्कल 55 होना चाहिए. तो हाउ मच शुड बी ओनली मैथ? 50, 30 या 20? 20, 20. 20. 20. अब हमें ये और ये चाहिए रेशियो. सो द आंसर इज 1:2. ना ही ये चाहिए ना ही ये चाहिए, है ना? सो यही है वेन डायग्राम का एडवांटेज. यू डोंट हैव टू फाइंड एवरीथिंग. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. तो देखते हैं. हाँ, ट्राई दिस लास्ट क्वेश्चन. बिकॉज सब में सेम पैटर्न है, ओनली द नंबर्स विल बी चेंज्ड. वन 150, sir. 150. 15% आया ना? हाँ सर, 15%, बट उसका 15 निकालना ना. हाँ, 1000 का 15% 150.
इसमें ना एक इंफॉर्मेशन है विच वी हैव नॉट सीन बिफोर. वो इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है, कॉफी, टी एंड आइसक्रीम. ये देखो 10% डू नॉट लाइक कॉफी, मतलब बाहर का जो पोर्शन है वो सर 10%. इसका कोई यूज ही नहीं है, विदाउट इसके भी हो जाता है. ये बाहर यस, हमें क्या चाहिए, बोथ टी एंड आइसक्रीम बट नॉट कॉफी. हमें ये वाला पोर्शन चाहिए. तो सबसे पहले क्या फिलअप करना है, जब बीच वाला वैल्यू, ऑल द थ्री कहीं पर लिखा हुआ है, ऑल द थ्री 50%. 15%. यस. अब टी एन आइसक्रीम सर्च करो, कहाँ पे टी एन आइसक्रीम है, या आइसक्रीम एंड टी. 30%. अगर ये 30% है तो बचे हुए 15% ये आप हो जाएंगे. खत्म आंसर, हमें यही चाहिए. सो 15% ऑफ टोटल 1000, आंसर इज 150. सो दिस इज द एडवांटेज. ठीक है. सो ऑल द क्वेश्चंस आर सिमिलर टू दिस. प्लीज आपके बुक में का क्वेश्चन कंप्लीट करो, प्रैक्टिस ऑन दैट. ठीक है. ये सब चीजें एक दिन में यू विल नॉट बी एबल टू कवर इट. इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपको ये सब बहुत कम टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा. सी अर्लियर, लाइक मोर देन आई थिंक 11-12 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं भी ये पूरा सॉल्व करता था. उसके बाद ग्रेजुअली थिंग्स आई स्टार्टेड टू नो थिंग्स. फिर मुझे पता चलता है कि हाँ, सब तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स यू कैन फिगर आउट. हाँ, अब ये कब हो पाएगा, ओनली व्हेन यू नो इट, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लॉन्ग. तो मेरा कहना यही है कि प्लीज प्लीज प्रैक्टिस करो ये सब चीजें. ओके. सो इंटरव्यू में पीपल गेट नर्वस, सो आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाते हैं, नहीं हो पाता है. सो यू नीड टू गेन कॉन्फिडेंस इन इट. ओके. सो लेट मी क्विकली टेक योर अटेंडेंस. Very less number of people today. I think starting में 26 था, now it is only 22. Is it still 26? So more than 26 it is. Okay, so just give me 2 minutes. I'll quickly take your attendance. Sejal is there? Not responding. Dipali? Present, sir. Rohan Jadhav? Yes, sir. Poonam? Aparna? Present, sir. Rohit Gaunde? Swapnil? Lakan? Present, sir. Shailesh? Pranay is also absent. I am pretty much sure these guys are busy with watching IPL. Huh? Abhishek Patil? Present, sir. Okay, Mudassir? Yes, sir. Divya? Divya is also absent. Upendra? Yes, sir. Vishal Jadhav? Anil?
Present, sir. Shivam Shirsagar. Then Damini, Rasika, Present, sir. Shreya, Sonali Kaple, Yes, sir. Tejas More. Tejas have joined but never responded. Sakshi, Pranita, Mahesh, Pooja, Present, sir. Manish Gaikwad, Suraj is present. Okay. Kalyani, Present, sir. Manoj Gulve, Present, sir. Sanjana Jadhav, Shivam Gupta, Aarti, where are Yes, you? sir. Present, sir. Present, sir. Arul, Rohit Das, Present, sir. Kaveri, Present, sir. Hello, sir. yes. Present, sir. हाँ Abhishek Patil updated. Sonali Sable, Subhada, Present, sir. Yogita, Sonali Bagre, Priti, Present, sir. Rakesh, Present, sir. Mayur, Mahesh Nemane, Present, sir. Ina, Present, sir. Akshata, Pallavi, Kanchan, Present, sir. Shrikant is absent. Shubham Jadhav, Present, sir. Namrata, Akash, okay, Namrata is present. Akash is absent, right? Abhishek Mate, is Akshada updated? Very updated. Okay, fine, done. Thank you so much, everyone. Yes, Akash, updated. See you tomorrow. Tomorrow we'll start with the reasoning part, okay?